ذرا بیوروکریسی پہ بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری پرابلمز کا ملبہ ڈائریکٹلی ان پر ڈالا جاتا ہے. بیوروکریسی کا جو اردو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بابوکریسی, افسر شاہی, لیکن بابوکریسی بھی یہ نیا نام ایجاد ہوا ہے اس دور میں. یہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی, سست روی کا شکار ہوتی ہے, طوالت ہوتی ہے, ریڈ ٹیپزم ڈالتے ہیں, فائلیں موو نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. گو سلو کی پالیسی ہے. اور اس دور حکومت میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی حکومت کے احتساب کے ڈر کی وجہ سے کام نہیں کر رہی. یعنی کہ ہر مرتبہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ کام نہیں کر رہے, اور جو کہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ پورا نظام چلائیں. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ بیوروکریسی کا جو نظام ہے وہ کتنا صحیح نظام ہے, کیا اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور وہ تبدیلیاں کیسے لائی جا سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان سرفراز صاحب جو کہ بیوروکریٹ رہے ہیں اور ایف بی آر میں جو ان کی آخری پوسٹنگ تھی وہ ایف بی آر میں تھے, اور ایف بی آر میں وہ بجٹ سیکرٹری تھے, تو بجٹ کے معاملات جو تھے وہ دیکھتے تھے, اور اس کے علاوہ اب وہ ملیشین گورنمنٹ کے ساتھ ایجوکیشن پر اور فائنانس پر جو ہے اکانومی پر ان کو کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ جو عام تاثر ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی, آپ چونکہ اس کا حصہ رہے ہیں, کیا یہ تاثر صحیح ہے یا نہیں؟ میں تو اس سے 100% اگری کرتا ہوں کہ وہ کام نہیں کرتے. اٹ ڈزنٹ ورک. اچھا, یہ ایک ریٹارڈڈ سسٹم ہے. دیکھیں, ہم اگر کرٹیک نہیں کرتے نا تو پھر اس کا مطلب ہے ہم ریفارم کرنا نہیں چاہتے. صحیح, ٹھیک ہے. تو پہلی بات کسی کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے از کرٹیک. آئیڈینٹیفائی دی پرابلم. بیوروکریسی ڈزنٹ ورک. اب لوگ کہتے, آپ سنیں گے کہ جی چل تو رہا ہے ملک. یہ جو چل رہا ہے نا, اٹس اے ریلیٹیو ٹرم کہ میں کس سپیڈ سے چل رہا ہوں. بالکل. اگر باقی لوگ 180 کی سپیڈ سے چل رہے ہیں تو میں اگر 40 سے چل بھی رہا ہوں تو میں -140 پہ چل رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں اگر اس کی اپنی اگزامپل لینی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان 65 ارلی پاکستان کی اکانومی, میں اپنی دکان سے جو بیچتا ہوں میری وہ اکانومی ہے نا, ایکسپورٹس. ہماری ایکسپورٹس وہاں کے 3 ملکوں کو ملا کے زیادہ تھیں. ٹھیک ہے. ہم بھی ایگریکلچر کے تھے, ہم ابھی بھی ایگریکلچر پہ ہیں. اب ملیشیا کی 1 ہفتے کی ایکسپورٹس پاکستان کی 1 سال کی ایکسپورٹس کے برابر ہے. 1 ہفتے کی ایکسپورٹس ملیشیا کی پاکستان کی 1 سال کی ایکسپورٹس. 1 ویک میں جو اکانومی چرن کرتی ہے, we churn in 1 year and this gap has come from 65 to now. تو میں کہوں جی نہیں چل رہا ہے. چل تو رہا ہے. میں بہت ہی برا چل رہا ہے, اس چلنے سے تو بہتر ہے نہ چلے. بول سکتے ہیں, you can't tell a lie to yourself. Yes. تو since I've been part of the system, تو اس لیے تو یہ ایسا کیوں چلتا ہے؟ اب سوال یہ بنتا ہے اگر ایسے چل رہا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا؟ کیونکہ یہ تو مانا جاتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی کا پارٹ سی ایس ایس آفیسرز ہیں جو کہ زبردست پریسٹیجیس ایگزام دے کر آئے ہیں, اور ان سے لائق فائق قابل پاکستان میں کوئی نہیں ہوتا. نہیں, بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا شروع میں, اٹس اباؤٹ نظام, سسٹم. سسٹم جو ہے نا اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں, جس کو سادہ لفظوں میں پالیسی, پیپل, پلیٹ فارم, آرگنائزیشن اینڈ پروسیسز. ہم چاروں میں فیل ہو رہے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک میں اچھا بندہ لا رہا ہوں, بٹ آر یور پروسیسز ورکنگ؟ از یور پالیسی اوکے؟ پالیسی اوکے کا مطلب ہے کہ اگر وہ سٹیزن اور بزنس کے لیے کام کرتی ہے. ہو از ناٹ ان دا روم, اس کو تو کبھی پوچھا نہیں جاتا نا. ابھی میں ٹیکسی پہ آتے ہوئے پوچھ رہا تھا جسٹ ٹو سی کہ میں ایک کام کے لیے جا رہا ہوں کہ یار آپ کا کیا خیال ہے, سسٹم چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی سسٹم ڈونٹ ایگزسٹ. یہ ٹیکسی والے کا نظام ہے. اور اگر آپ بزنس والے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا نہیں, نظام تو میرے راستے میں آڑے آتا ہے. تو میں اگر سٹیزن اور بزنس کے لیے کام نہیں کر رہا تو who am I working for? پھر کیا مطلب میں کامن گڈ کے لیے نہیں کام کر رہا, پھر اپنے گڈ کے لیے کام کر رہا ہوں. ہاں, کسی اور چیز کے لیے کام کر رہا ہوں. صحیح. وہ امتحان دے کر اتنے لائق فائق لوگ آتے ہیں, وہ کیوں نہیں کام کر؟ کیا وہ ایگزام اتنا ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, ایگزام میرے خیال میں دس از ون آف دا تھنگز. ایف پی ایس سی جو ہے نا, اٹس اے کریڈیبل انسٹیٹیوشن. میرے خیال میں وہ ایک آئیلینڈ انہوں نے اب بھی مینٹین کیا ہوا ہے جو اب بھی کریڈیبل ہے. اب تو اس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں, اردو میں شفٹ کر دو سب. کریڈیبل ہے, اتنا کریڈیبل ہے کہ آئی کین سے اگر کوئی ایک انسٹیٹیوشن بہت ہی 100% کریڈیبل ہے جو ٹھیک بندے لے کے آتا ہے وہ یہ, لیکن بندے آر سکڈ انٹو دا سسٹم. اب سکڈ انٹو دا سسٹم کی اگر وجہ پوچھے نا, کہ مثال کے طور پہ آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہیں, ادارے کا ہیڈ تو اس میں منسٹر ہی ہوتا ہے. صحیح, بالکل صحیح ہے. میں نے اپنے گھر کا کام کروانے کے لیے ایک پلمبر بھی رکھنا ہو تو میں 3-4 بندوں کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ بھی کام کر رہا ہے, وہ بھی کام کر رہا ہے, وہ بھی کام کرتا ہے, کون سا اچھا کام کرتا ہے. اینڈ دین میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ والا کام کیسے کرو گے, از اٹ ہیپننگ,
कि मैंने एक चेयरमैन FBR लगाना है या सेक्रेटरी एक्साइज लगाना है, तो मैं उन 4 बंदों से पूछूं जो मुझे दोस्तों ने बताए हैं, फैमिली ने बताया कि यार आप ये काम कैसे करेंगे, आई हैव माई कंस्ट्रेंट्स, मेरे पास इतना ही बजट है, लेकिन मुझे बताओ, आई गिव यू 2 years और 3 years, आप इन 3 सालों में क्या कर सकते हो, एंड कैन यू लिसन टू 3 people एंड चूज द वन हु यू फील सूट्स बेस्ट। ये काम नहीं होता, वी जस्ट पिक पीपल एंड जस्ट पुट देम एंड फाइंड आउट दे डिडंट वर्क। तो अगर हम फाइंड आउट कर लें कि इट डजंट वर्क या दिस मैन इज नॉट वर्किंग एंड नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो फिर उस सूरत में बदलना वो ठीक है सिस्टम के लिए कि बंदा ने ला के फिक्स कर दो उधर? देखिए मसलन किसी भी, अब मैं आपको अगर पीयर टू पीयर बनता नहीं है, लेकिन मलेशिया से एग्जांपल दी जा सकती है। मलेशिया फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं है और डेवलपिंग वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड के दरमियान की ट्रांजिशन में है। तो अच्छा, अभी उसने ट्रांजिशन करनी है? जी या अभी ट्रांजिशन हुई नहीं है, अभी उनकी ट्रांजिशन जहाँ पे वो हमारे एक्सपोर्ट्स के पूरे साल के 40 टाइम्स हैं, अभी भी वो ट्रांजिशन में, अभी वो ट्रांजिशन करने के उसमें हैं। 2020 के टारगेट शायद वो भी मीट नहीं कर सके। उनका टारगेट्स क्या थे? बड़ी इंटरेस्टिंग टारगेट है। टारगेट ये है कि बाजार पे चलता हुआ बंदा अपने चाल ढाल और लिबास से ये ना पता लगे कि वो किस सोशल स्टेटस का है। ये मलेशियन गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया हुआ है अपने आवाम के लिए, क्योंकि मेरा बंदा तो चलता, मुझे पता चल जाता है कि एनीमिक है। मुझे पता चल जाता है कि नहीं ये इसके तो कपड़े वो नहीं हैं। आपको यूरोप में नहीं पता चलता। सही। और ये टारगेट अचीव करने के लिए मलेशिया वालों ने स्ट्रेटजी क्या बनाई है? स्ट्रेटजी ये है कि आपने काम करना है परफॉर्मेंस बेस्ड। मैं परसों मलेशिया के साथ एक 3 घंटे की डिस्कशन में था। देयर वर 100 डिपार्टमेंट्स विद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की टीम में। मैंने कहा हाउ कम सो मेनी डिपार्टमेंट्स विल बी वर्किंग टुगेदर टू अचीव वन ऑब्जेक्टिव। हमारे तो एक महकमा दूसरे से बात नहीं करता। कहते वजह यह है कि द सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में होता है, his KPIs, his performance is tied up to this project. सही है। This is a sensitive project and those top sensitive projects किसी न किसी की गर्दन उसके साथ अड़ी हुई। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना तो नथिंग वर्क्स। जज़ा सजा का निज़ाम। एंड ऑन द अदर साइड, तो पाकिस्तान में अब आते हैं। पाकिस्तान में शुरू कहाँ से करें? इमरान खान वाज कि तब्दीली लेकर आऊंगा, तो जब तब्दील सिस्टम नहीं है तो किस सिस्टम में तब्दीली लाएंगे? कहाँ से शुरुआत करें? पाकिस्तान की 3 प्रॉब्लम्स का हल अब कहाँ से ढूंढे? मतलब ब्यूरोक्रेसी को फिक्स करना है, पॉलिसी मेकर्स को फिक्स करना है, मिनिस्टर्स को फिक्स करना है, इन तीनों में से या किसी को भी फिक्स ना करें, कुछ नया लेकर आए इधर। हाँ नहीं, दैट्स ट्रू। वो हर बंदा अपनी बक को आगे करता है। आप ब्यूरोक्रेसी से पूछे तो वो कहेंगे जी मुझे तो वो काम ही नहीं करने देते, और उनसे पूछे तो वो कहेंगे जी नहीं मुझे तो वो कोई और हैं जो काम नहीं करने देते। उनसे पूछे तो वो कहते नहीं अमेरिका नहीं काम। दिस इज नॉट। हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स में अपनी पॉलिसी स्पेस में इतनी जगह है काम करने की, इतनी जगह है काम करने की कि आई वांट टू वर्क। लेकिन एक तो वो अफ्रीकन कहते हैं कि इफ यू वांट द डिश वेल डन लीव द कुक फॉर अ व्हाइल। ओके। एक तो कुक को रखे वो जिसको पकाना आता है, वो बहुत सिस्टम को पता होता है। एवरीबडीज रेपुटेशन इज ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग। मैं सिस्टम में दाखिल होता हूँ ना, पहले 6 महीने में मुझे एक लेबल लग जाता है कि ये अब तो हमने महकमों को शिकारगाहें बनाया हुआ है ना। पता चल जाता है कि ये शिकारगाहों वाला है कि नहीं, ये इसका कोई किताब से कोई तल्लक से है और ये रख रखाव काम करना चाहता है, सीखना चाहता है। सिंपल सी बात है, किताब से ताल्लुक अगर वो नहीं है ना, आज की इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी और आज के इंडस्ट्री के मसाइल आप इस कॉम्पिटेंसी से हल नहीं कर सकते। CSS के ऑफिसर इज अ वेरी वेरी डिसेंट पीपल व्हेन दे कम इनटू द सिस्टम। वहाँ पे देखिए, मैं एक उस्ताद भर्ती करता हूँ तो एक होती है सर्विस ज्वाइन करते हुए ट्रेनिंग, एक होती है फिर इन सर्विस ट्रेनिंग एंड फिर इन कंटिन्यूस। हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है ब्यूरोक्रेसी की। तो वो जो ट्रांसफर्स होते रहते हैं वो बगैर ट्रेनिंग के होते रहते हैं। फिटिंग फॉर द जॉब कोई ट्रेनिंग नहीं है, सिवाय मिसाल के तौर पर करूँ फॉरेन ऑफिस हमारा अच्छा काम करता है, उनको वाकई अदब आदाब, वो एटिकेट्स, डिप्लोमेसी सिखाई जाती है। ठीक है, हमारे पुलिस वाले अच्छे हैं, उन्हें अपने काम का पता है, वो फलाना। लेकिन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मतलब मैं इनको नहीं करके बहुत अच्छे चल रहे हैं, नहीं, when get into the system they are sucked up, वही प्रोसेस वही घटिया। ये जैसे मिसाल के तौर पर अगर FBR की बात करें, अभी शब्बर जैदी साहब ने जो है वो आए और मैं तो बड़ा तब्दील कर दूंगा, और लोगों की भी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि वो तो जी सब कुछ जानते हैं, नहीं कर सके। तो वजह यही थी, you have the same lot जिससे आप ले रहे हैं काम। और लेकिन FBR है तो आपके पास 3 महकमे हैं। तो द मैन ऑन टॉप डजंट मैटर अलोन ना, फिर तो बाकी भी सारे जो नीचे हैं उनको भी कुछ करना है। यहाँ पे अगर आप डाउन टू डिफाइन करें ना, इस तरह से है
आई हैव लर्नड इट फ्रॉम मलेशियन बाय द वे। इस तरह से आई हैव विजिटेड 35 कंट्रीज एंड वो मैं काफ़ी सारी कंसल्टिंग मेरी है गवर्नेंस की और इसकी। देखिए ये होता ये है कि मेरा एस्केलेट करने का तरीका कार क्या है। इसके लिए आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आप ये सोचें कि किसी भी ऑफिसर की एट द सीनियर ऑफिसर आप ये देखें कि उसकी अगर टाइम एंड मोशन स्टडी करें ना कि आज उसने क्या किया, यू विल फाइंड आउट वेदर ही इज एन इंस्पेक्टर जनरल और सेक्रेटरी। 90% ऑफ द वर्क ही इज डूइंग वो असल में क्लर्क का था या इंस्पेक्टर का था, और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था उस पर। मैं एक इशारे पे खड़ा हूं ना जो सामने है, तो मेरा उतना ही काम है। फिर मेरे से जो ऊपर बंदा है ना उसके जिम्मे उस सेक्टर के 3-4 चौक हैं, और उससे ऊपर वाले बंदे के जिम्मे सेक्टर की इन एंड आउट्स हैं, उसके ऊपर ये हाईवे और सिटी है। बट आई कीप एस्केलेटिंग, लेकिन मैं खड़ा इशारे पे ही रहता हूं और मेरी माइंडसेट भी वही रहता है, क्योंकि मुझे उस सिस्टम थिंकिंग का और थिंकिंग बियॉन्ड माई नोज, अगर मैं इस काबिल नहीं हूं कि आई लीव समथिंग विच आउटलिव्स माय टेन्योर, तो मुझे वहां भेजना नहीं चाहिए। हमारा सेक्रेटरी, हमारा आईजी पुलिस, आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि वो असल में उधर ही खड़ा है जहां पे जिस दिन वो दाखिल हुआ था, कहीं वो आगे नहीं मूव हुआ है। आई यूज्ड टू थिंक यार ये तो एस्केलेटर मॉडल है, आप बस ये है कि रिस्पेक्ट अपवर्ड्स एंड यू आर ऑन द एस्केलेटर, आप वहां पहुंच ही जाओगे। लेकिन नाउ आई फाउंड आउट इट्स नॉट, इट्स अ कन्वेयर बेल्ट मॉडल। बिकॉज ऊपर मैं जा रहा हूं तो मुझे विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन नहीं इस बंदे को इधर नहीं उसके उधर होना चाहिए। यहाँ तो आप सीधा ही चल। हाँ, मेरे पास एज एन आरपीओ, एज ए रीजनल पुलिस ऑफिसर एक कंप्लेंट आती तो मैं ये नहीं कहता कि यार हैव यू गॉन टू माय डीपीओ, हैव यू गॉन टू द एसएचओ। वो कहते हैं वहां तो प्लीज लेट द एसएचओ वर्क, प्लीज लेट द हेडमास्टर वर्क। लोगों को अपनी स्पेस में काम करने दो, तो यू आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ स्पेस टू थिंक सिस्टम को ठीक कैसे। एसएचओ के पास जब तक फोन ना जाए वो काम नहीं करता, तो बंदा भी जोड़ रहा रहता कोई फोन करने वाला हो। लेकिन मैं दूसरी प्रॉब्लम एक है, वो ये है कि हम जब कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, तो चले काम तो वो वैसे ही नहीं करती थी, या कर रही थी तो ठीक नहीं हो रहा था। खान साहब ने आने के बाद अपने वजीरों को ये कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी को मत कहना कि तुम लोगों ने ये करना है, और ब्यूरोक्रेसी को कह दिया कि मेरे वजीर तुमसे कुछ ऐसा वैसा काम कराएं तो मत करना। अब दोनों का वहां पे क्लैश आ गया। मिनिस्टर कहता है ये काम करना है, वो सेक्रेटरी वगैरह कहते हैं नहीं सर हमें तो वजीर आजम ने कहा है कि मिनिस्टर की बात नहीं माननी। तो ये एक और अलग क्लैश है जो हाउ टू डील विद दैट। मतलब इधर तो दोनों ही कह रहे हैं काम मत करो। असल यही बात तो यही है, हमारा मुल्क जो प्राइस पे कर रहा है, प्राइस तो आप और मैं पे कर रहे हैं, सिटीजन मैन ऑन द स्ट्रीट, वो काम ना करने की पेश कर रहा है, भुगत रहा है। वी आर नॉट bearing the cost of making wrong decisions, we are bearing the cost of inaction, not making decision। हम गलत भी डिसीजन करेंगे ना कुछ सही हो जाएगा तो कल को उसे कोई रिबाउंड करेगा, कुछ ना करेगा, वो नहीं होता। और जो अगर महकमे जहाँ पे इंप्रूव हो रहे होते हैं, आपके घर में कोई चीज़ थोड़ी सी गलत हो रही होती है तो कोई कहता है ना, कोई वाता सब्र करता है ना, वो कौन सा महकमा होता है? ऑडिट। सही है। ऑडिट का काम ही ये होता है कि लुक इट फ्रॉम द सिस्टम्स पर्सपेक्टिव। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक कंटेनर का प्रोग्राम लॉन्च किया, दे स्पेंट अबाउट $150 million ऑन इट। कुछ छोटी सी ग्लिच आ गई और 4 दिन पोर्ट पे माल रुक गया, एंड कैन यू इमेजिन उन्हें $250, ट्वाइस मोर देन बिजनेस को वापस पे करना पड़ा। द ऑडिट केम इन, दे डिडंट हैंग द पीपल। अच्छा, दे सेड नहीं, people were not trained to do that kind of risk management because they thought कि उनका जो पिछला तजर्बा है वो 2 चौक बनाने का, वो एक सिटी बनाने के भी काफी है। तो no, you should train your people and do this and please build on it। हम बस सिस्टम के एक पहिए को या तो लोग को हैंग करते हैं, पॉलिसी ठीक नहीं करते। डराया हुआ है खान साहब, ये आप गाड़ी की तरह ले लें, इट्स द पीपल, प्रोसेस, प्लेटफॉर्म एंड योर एंड द बिगर थिंग इन इट द चेसी इज कल्चर। वो कल्चर चेंज करना है आपकी टॉप ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनल चीज़ जो मैं आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा, मलेशिया के साथ जो कि आप काम कर रहे होते हैं, तो उनसे क्या एक चीज़ सीखकर पाकिस्तान, जरा हमें भी दे दें। हाँ, मतलब पाकिस्तान अपने सिस्टम में क्या एक चीज़ वो इम्प्लीमेंट करे जिसकी वजह से मलेशिया आज इतना आगे है? ओके, द वन थिंग इफ आई विल से द सेम व्हाट आई सेड एंड रिपीटिंग, कि आप अपनी इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि हमेशा मेरे पास कम मनी है ना, तो मैं उसमें प्रायोरिटाइज करके उसमें कैटेगरीज बनाएं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फॉर पब्लिक और ये दूसरे नंबर पे है और ये मुझे पैसे मिलेंगे तो करूंगा। टाई इट अप विद द नेक ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू टेक द सीट ऑफ द सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी एंड एवर। उनकी परफॉर्मेंस उन प्रोजेक्ट से टाई अप करें कि आई वांट टू सी थिंग्स देयर इन 6 months, देयर इन 1 year, एंड आई अश्योर यू विल स्टे देयर इन फॉर 2 years।
अगर आप ये एक काम कर दें ना, प्रोजेक्ट की प्रायोरिटाइजेशन एंड टाइमिंग इट अप विद माय परफॉर्मेंस, तो फिर मैं वॉकअवे नहीं ना होता फिर। सही। उनको ये काम की वजह से प्रोजेक्ट्स इतने मेटिकुलसली चल रहे होते हैं कि वो जो जिसके बाबा जी के उधर वो है ना, वो 3 हफ्ते महीने बाद जरूर आता है। और ये टॉप टू बॉटम हर एक के साथ जब ये चीज होगी तभी सब काम करेंगे, वरना वो होगा कि ऊपर वाला बंदा आएगा, नीचे तो काम ही कोई नहीं कर रहा। हर आदमी की गर्दन जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए उसके टारगेट नहीं है। दूसरे लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेटिक निजाम में ये नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि आप आगे तो आगे। एक दूसरी बात करना चाहूँ तो वो जैसे आई लर्नड इट फ्रॉम हार्वर्ड कि जो बाबा है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। मैं छोटा हूँ तो मेरे पास एनर्जी है, बाबा हूँ तो मेरे पास विजडम बहुत, एनर्जी नहीं है। एनर्जी इज ऑलवेज इन द मिडिल टीयर। सही है। मिडिल टीयर के लोगों को अगर आप इंसेंटिवाइज करें बाबा जी, तो दे कैन मेक वंडर्स। बेहतरीन। ये था जी आज का पॉइंट, जो की टेक होम मैसेज था वो ये था। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरफान साहब, वक्त दिया आपने।